My name is Pooja Chetri, and I'm the project manager at Connecting Dreams Foundation and your host for the session. I welcome you all to yet another session of Inclusion Adda. Inclusion Adda is an initiative by CDF Transformation that offers a platform for career progression talk, where people from the diverse and inclusive community share their personal and professional achievements and stories, building a diverse and inclusive community. Transformation aims to mainstream the trans community into the society, starting from building knowledge in basic IT and professional edge, and then moving towards mainstream employment and entrepreneurial opportunities. Without any further delay, I would like to introduce you to our guest for today, who is Nishu. Nishu is a CTF Transformation Fellow and currently works as an accountant and a makeup artist. In addition to that, Nishu has a deep interest in academics and is in the process to soon start his journey as a research scholar. Welcome, Nishu. Thank you for taking your time to be with us today for the Adda. So Nishu, if you can take some time and take us through thoda sa aapka brief introduction about what's your full name, how are your aspiration growing up, aap kahan kaam kar rahe ho, and all those. Thank you so much. My name is Nishu Singh. And first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce my life and myself. And I am basically from Uttar Pradesh, but currently staying in Delhi, Delhi Uttam Nagar. And I did my graduation in BCom from SOL Delhi University. Then I did my post-graduation in political science from IGNOU, and currently I am pursuing PhD IGNOU from Delhi. And now I am working Super Acquisition India Private Limited Company of Mayapuri. That is wonderful, Nishu. I think you have, Malabki, the moment that I saw your name and about what you are doing, you just blew me away because hum kitna sochte, even for us, I mean, like, aap already as an accountant kaam kar rahe ho, you also have an interest in makeup as a makeup artist, and that is also something you do on Sunday. Or uske upar se, I just saw that you were even pursuing your PhD, and I was just like, oh my God, he's such an inspiration kind of. So I think you become for everybody जो आपके पास है, and for anybody to know your story, it's a privilege for us, and we are so happy to have you. So Nishu, starting with what you are currently doing now, can you tell us how does your day-to-day life look like? कि आपके routines क्या होते हैं? I understand कि आप as a research scholar भी कर रहे हो, PhD आप अपने daily jobs पे भी कर रहे हो. So I can understand कि time manage करना difficult होता होगा. You have so many responsibilities that's coming up. So can you share a little bit about how does your day-to-day life look like? यस मैम, और टाइम तो बहुत, मतलब ये टाइम ऐसा है कि बहुत ही क्रिटिकल वो है कि अगर इसे हम मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से निकलता चला जाएगा. ये एक ऐसा टाइम है, और इस टाइम को अगर हम अभी मैनेज कर लेंगे तो आगे चल के हमें भी बहुत ईजी होगा. इसीलिए मैंने मान लो कि मैंने 10-11 साल की उम्र से मैंने अर्निंग स्टार्ट करी है. सेल्फ स्टडी मैंने 10 साल की उम्र से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करा था एज अ न्यूज पेपर राइटर, और वही टाइम मेहनत करते करते आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं. वही मेरी एक मेहनत रंग लाई है. आज पता लगा है कि वो मेहनत आज जो रंग लाई है वो पुरानी मेहनत थी. तो वही है कि आज भी हम सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, 5 बजे उठते, रात में भी सोते सोते 12 बज जाता है, 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है. पूरा दिन कैसे मैनेज होता है, मतलब इतना डिफिकल्ट होता है पूरा दिन चलाना. लेकिन फिर भी बल्कि आज तो ऐसा टाइम हो गया कि हम अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते हैं. जब से फोन, लैपटॉप, पूरा दिन इसी में निकल जाता है. धीरे 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 टाइम का पता ही नहीं लगता कब रात हो गई फिर कब सुबह हो गई. ऐसे ही चलता है. तो सुबह मॉर्निंग में उठे, जिम गए, फिर वहाँ फ्रेश वगैरह हुए, फिर ऑफिस आ गए, ऑफिस में काम वगैरह करा, 7 बजे ऑफ हुआ, 7 बजे घर गए, थोड़ा स्टडी करी, स्टडी करने के बाद खाना डिनर करके तो यही रूटीन है. और संडे को जो टाइम मिलता है, संडे को बस यही जो एक्स्ट्रा वर्किंग है वो करना है, और बाकी पूरे वीक का जो रूटीन है, जो काम पेंडिंग हो गया उनको पूरा करना है.
बस यही संडे भी उसी में ही निकल जाते हैं। निशु, आपका मतलब कि आपका डेली हसल बोलती हूँ मैं ऐसी कि मतलब कि आप कॉन्स्टेंटली यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, तो ऐसे में आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? हम कभी कभी इतना टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो वो बहुत मुश्किल होता है नेक्स्ट डे उठ के फिर वो माइंडसेट फिक्स करने के लिए कि नहीं, मैं आज उतनी क्वालिटी के साथ फिर से परफॉर्म करूंगी, या मैं कल जितने क्वालिटी से परफॉर्म की थी मैं उससे ज्यादा करूंगी काइंड ऑफ। तो ऐसे पे आप खुद को मोटिवेट कैसे कर रखते हो? मोटिवेट नाम मैंने अपने फादर से सीखा है, मोटिवेट कैसे होते हैं। मेरे फादर 7 बजे ऑफिस जाते हैं और यहाँ से वो मानेसर जाते हैं। मुझे जब मैं उनको देखता हूँ कि वो मानेसर जाते हैं और वो 12,000 रुपये की जॉब करते थे। इवन पहले वो मायापुरी में ही थे, तो 12,000 रुपये की जॉब करते थे। सुबह मॉर्निंग में उठना, रात में सोना, इतनी डिफिकल्टली से उन्हें उन्होंने हमें लाइफ दिया है। और वही देख करके मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हमारे फादर इतनी मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे खड़े होकर प्राइवेट जॉब करके, कैसे हमें उन्होंने पाला है, हमें आगे कैसे करना है, कैसे बढ़ना है। उनको देख के मुझे मोटिवेशन होता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं। हम तो चलो फिर भी ऑफिस में बैठते हैं, इसी में बैठते हैं, वो तो इतनी हीटिंग में जाकर खड़े होकर काम करते हैं। मुश्किल से 12,000 रुपये की जॉब में उन्होंने हमें पाला है। फिर भी मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में। और अपने पापा की हिम्मत से ही आज मुझे हिम्मत मिलती है कि पूरा दिन काम करो। और लाइफ मिली है, जब लाइफ मिली है तो उसको यूज करो। लाइफ वो मत करो कि लाइफ खराब मत करो। एक एक दिन बहुत कीमती है हमारी लाइफ का। यस निशु, आई थिंक दैट्स एन इंस्पिरेशन। मतलब कि आप अपने घर पे अगर किसी को, इफ यू कैन लुक अप टू समबडी अपने घर पे, देन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मतलब कि हाउ दैट मस्ट हैव मेड यू वेरी स्ट्रांग अपने चाइल्डहुड से। जैसे आपने पहले बोला था यस मैम। since you were 10 years old, आप ये टाइम मैनेजमेंट इतने अच्छे से कर रहे हो, and you have been learning that till now. So in the 15-20 years this has become a little bit आपकी आदतें हो गई होगी ये टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, एंड द फैक्ट दैट स्टार्टिंग 10 इयर्स की ओल्ड से मैंने सेल्फ स्टडी कैसे करी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या था कि हमारी जो फैमिली सिचुएशन थी, पापा 10-12 हज़ार की जॉब करते थे। जहाँ पापा ने जॉब स्टार्ट करी थी वो इवन 300 रुपीज पे जॉब स्टार्ट करी थी। फिर वो अभी अभी ये करेंटली वो 12,000 की जॉब कर रहे हैं उसी कंपनी में ही। उनको हो गया 32-35 ईयर उस कंपनी में जॉब करते हुए, फिर भी 12,000 की जॉब करते हैं। तो उस टाइम ऐसा था कि घर के भी खर्चे चलाने हैं, गाँव भी देखना है, सब कुछ देखना था। तो बहुत ये था कि पापा से पैसे मांगो तो कहते थे बेटा आज नहीं है कल ले लेना। तो वो स्कूल में जाकर के जो रजिस्टर ना बने तो स्कूल में डांट पड़ती थी, वो वर्क पूरा ना हो तो उसके लिए डांट पड़ती थी, स्टडी पीछे रह जाती थी। फिर जो मैंने सोचा कि अभी तो कोई काम नहीं कर सकते, किसी ने मुझे गाइड करा कि आप न्यूज़पेपर डालो मॉर्निंग में पार्ट टाइम वर्क करके। मैंने पार्ट टाइम वर्क करा, मॉर्निंग में 4 बजे उठे, साइकिल उठाई, सीधा गए, न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर वहां से उठाया, घरों में अपार्टमेंट में डाला, घरों में डाला। मुझे मात्र वही 300-400 रुपीज पर मंथ मिलता था। उसमें मुझे खर्चा चलाना होता था और अपनी स्टडी का पूरा खर्चा उसी 300-400 रुपीज में निकालना होता था। ये बात है 2010 2006 की। 2006 से मैंने न्यूज़पेपर डालना स्टार्ट करा था और मैंने 2011 तक मैंने न्यूज़पेपर डाल के अपनी स्टडी करी है। और 2011 में जाकर मैंने स्टॉप करा ये न्यूज़पेपर का काम। एंड देन जब मेरी 12th क्लियर हुई तब मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से स्टार्ट करा है स्टडी। एंड उसके बाद फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से करने लगे, फिर उसके बाद जॉब वगैरह करने लगे। जॉब वगैरह करने के बाद फिर अपने पैरों पे खड़े हो गए। I mean, like you are literally leaving me speechless at this very moment. मैं थोड़ा time लेके मैं process कर रही हूँ hearing about your story kind of. So Nishu, आपने since you were class 10 आपने self study किया, and after 12 you did your studies through correspondence, and then you were working and supporting family. Then अभी भी आप family को support कर रहे हो. Why do you think education is so important? अगर मैं आपकी story सुनो तो I listen to a story एक ऐसे इंसान से जो बोलता है कि नहीं पढ़ाई बहुत जरूरी है,
और मैं ऐसे सर्कमस्टांसेस पे भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई हैव मूव्ड सो अहेड कि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ. सो व्हाई डू यू कंसिडर एजुकेशन टू बी सो इम्पोर्टेंट? मैम, मेरे फादर ने मुझे बताया था, बचपन में तो खैर नहीं समझ आता था ये सब बातें, ये सब लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा। लेकिन अब हाँ, जो बचपन की पढ़ाई जो करी है वो अब जाके मतलब जब से होश संभाला है 11th 12th क्लास से, जब हमें थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि स्टडी नहीं करेंगे तो इस लाइफ में हमारे कुछ भी नहीं है, कोई हमें कोई एक वैल्यू जो होती है हमारी लाइफ में, किसी के पास हम खड़े हैं तो वो वैल्यू भी नहीं मिलेगी अगर हमारे पास स्टडी नहीं है। हम एजुकेटेड नहीं है तो किसी के साथ हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं, किसी के साथ हम बात भी नहीं कर सकते हैं। इवन वो हमें अपने लायक उस लायक समझते नहीं है। ये मिडिल क्लास फैमिली के साथ तो बहुत ज्यादा होता है ऐसा, कि अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं और हम स्टडी नहीं कर पाए हैं या स्टडी नहीं कर रहे हैं, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जॉब के लिए प्रॉब्लम्स हैं, और बाहर निकलने में प्रॉब्लम्स हैं, लोगों से बात करने में प्रॉब्लम्स हैं, कहीं जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। इवन हर एक चीज में स्टडी बहुत बहुत जरूरी है। और जिस टाइम मैंने स्टडी करी उस टाइम तो फोन लैपटॉप ये तो होते भी नहीं थे, और फोन वगैरह नहीं होते थे। आजकल तो यूट्यूब एक ऐसा ऐप है जिससे हम अपनी स्टडी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आज भी मुझे इवन कुछ भी नहीं आता है अपनी कंपनी में, अगर मैं कहीं ऐसा होता है कभी कभी कि हम टैली में कुछ वर्किंग्स होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हम यूट्यूब एक ऐसा ऐप है, यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। आज भी स्टडी में अगर हमें कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब इज द बेस्ट। वो एक बेस्ट ऑप्शन है कि हमें कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। गूगल हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जिस टाइम मैंने स्टडी करी उस टाइम फोन भी नहीं था, फिर भी हमने ऐसे स्टडी करी है। वो तो एक बहुत डिफिकल्ट डे था जो गुजर गया। अब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कितना डिफिकल्ट डे था, कितना डिफिकल्ट टाइम था जो गुजर गया है। अब जाके रिलीफ होता है कि हाँ वो स्टडी आज हमारे काम आई है, कि आज हम इस जगह पे हैं। सो निशु, जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, तो आप सोचते हो कि हाँ मैंने वो टाइम पढ़ाई की और मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ डूइंग वेल इन लाइफ, राइट? उसी के ही थ्रू कि आज जो मैंने पुरानी पढ़ाई करी तो मैं आज यहाँ पे हूँ, और आज जो मैं स्टडी करूंगा वो इन फ्यूचर मुझे मिलेगा। ये मुझे आज भी विश्वास है कि आज जो मेरी स्टडी रहेगी वो इन फ्यूचर मुझे जरूर मिलेगा। निशु, मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे पीएचडी करना है? आई मीन लाइक दैट्स सच अ बिग 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 डिसीजन, आई थिंक किसी के भी लिए, क्योंकि रिसर्च ऐसे नहीं होता है कि 1-2 साल पे मैं कर दूंगी टाइप, राइट? उसमें आपको 5-6 years की कमिटमेंट लगती है. So how did you decide कि मुझे PhD करना है? Where did that thought come from? Where did that aspiration and inspiration come कि नहीं मुझे करना है अब ऐसे? हाँ, तो ये है कि मैम अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो एक वो जैसे कहते हैं कि एक धागा जो है अगर टूट जाए, अगर हमारी स्टडी छूट जाए, फिर उसके बाद मन नहीं करता कि हम स्टडी करें। तो वही है कि स्टडी का भी मेथड है कि अगर ये जहाँ छूट गई तो उसके बाद मन नहीं करेगा कि हम स्टडी कर So पाए। आपने ये माइंडसेट कब बनाया? आपने कब सोचा कि नहीं अभी मुझे PhD करना है, काइंड ऑफ? मेरी ग्रेजुएशन फाइनल हुई तो उसके बाद मैंने घर वालों ने बोला कि आगे स्टडी करनी है। मैंने कहा हाँ मुझे अभी स्टडी करनी है, तो अभी मुझे किसी और चीज़ में डिस्टर्ब नहीं करे। तो फैमिली ने भी बोला कि ठीक है चलो। मैंने मास्टर करी, फिर मास्टर करने के बाद अभी मैंने पीएचडी का फॉर्म फिल करा, उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया है पीएचडी का। फिर उसके बाद अभी इंटरव्यू हुए हैं, इंटरव्यू दे करके अभी उसका सिलेक्शन होना बाकी है, सिलेक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद मेरी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही कि स्टडी चलते चलते यही था कि अब करना है तो करना है पीएचडी। पीएचडी के बाद भी फिर मुझे दोबारा करनी है। एक मिनट नाम होल्ड करिएगा। So Nishu, अभी आप at this point of time in your life, how do you feel? मतलब कि do you feel motivated each day thinking कि नहीं is also not my end? मतलब कि accountant or a makeup artist is not the end. There is a long way to the journey.
क्या आपका, डू यू फील कि नहीं मैं हर एक दिन सीखना चाहता हूँ एंड टिल द डे आई डाई आई वांट टू लर्न, और मैं सीखते सीखते कि एज मच एज आई हर्ड यू, मुझे लगता है कि आप ऐसे हो कि आप खुद को इतना इम्प्रूव कर रहे हो दैट यू आर इम्प्रूविंग पीपल अराउंड यू, जो भी आपको दिखते हैं आई एम श्योर दैट दे फील लाइक ओ, I mean like Nishu is an inspiration. I mean like अगर वो कर सकता है तो why can't I, kind of ऐसे. So do you have that thing in you where you think, you know, I have to learn each day? क्या होता है, मैं एक सबका ना ड्रीम होता है अपना, बचपन में भी ड्रीम होता है, फिर उसके बाद बड़े होने के बाद भी अगर कहते हैं एक पटरी होती है, अगर पटरी चेंज कर दी जाए तो उसके बाद भी पटरी का और ट्रेन का एक रूट होता है कि उस रूट पे से जाना है। तो हमारा बचपन में ही एक सपना था, एक ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन घर की सिचुएशन में उस भाग दौड़ में ऐसा हो नहीं पाया, नहीं बन पाया। लेकिन बड़े होके फिर ये लगा कि अब ड्रीम वो कंप्लीट नहीं हो सकता ड्रीम जो मैंने सोचा था, क्योंकि उस ड्रीम के लिए तो बहुत मेहनत करनी थी, उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना था। तो घर वाले इतने थे नहीं स्ट्रांग कि वो मुझे क्या नाम है ओपन स्टडी करवा पाते, उसके लिए इतना अफोर्ड कर पाते, तो उनके पास इतना था भी नहीं। तो इसलिए मैंने वो ड्रीम, जब बड़े हुए तो वो ड्रीम छोड़ा, मैंने कहा नहीं अब ये नहीं हो सकता। अब तो मैंने जब खुद ही अपने आप स्टडी करनी है तो कहाँ तक करेंगे, अभी भी इवन अभी भी मुझे घर जाके यही लगता है कि अब थोड़ा सा पढ़ लूँ बस इतना पढ़ लूँ कि चलता रहे काम। तो वही है, अब बड़े होके मेरा एक ड्रीम और हुआ कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है। तो मुझे लगा कि क्या अपना बिजनेस करो कि फाइनेंशियली जो हमारे हाथ में है उसके अकॉर्डिंग हमारा अपना बिजनेस हो जाए। या अगर हमारे पास इतना, तो अभी हमारे पास फाइनेंशियल नहीं है कि हम बड़े बड़े सपने देख सके, बड़े बड़े बिजनेस कर सके। तो ये लगा कि हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है मुझे मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स में, तो मैं अपना पार्ट टाइम में ये भी कर सकता हूँ। मेरा संडे ऑफ रहता है, मेरे एक फ्रेंड का पार्लर है, मैंने उसको बोला कि आप मुझे थोड़ा सा वर्क सिखाओ कि इवन एक अर्निंग के साथ साथ मेरी सेकंड अर्निंग भी होनी चाहिए, कि अगर कभी फर्स्ट अर्निंग मेरी बंद हो तो सेकंड इवन रीस्टार्ट कर सकूँ, या वो स्टार्ट कंटिन्यू चलती रहे। हमेशा लाइफ में दो अर्निंग होनी बहुत जरूरी है, कि कभी भी एक अर्निंग स्टॉप हो तो सेकंड रनिंग करती रहे। यही सोच करके मैंने संडे भी अपना कवर कर दिया इसी में कि नहीं खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है, कि इससे अच्छा पार्लर जाओ, सैलून जाओ, वहां पे कुछ सीखने को मिलेगा, सीखेंगे, आगे उसी से बैठते रहेंगे, और कभी ऊपर चाहो तो अपना सैलून जरूर होगा, और हम अपने सेल्फ डिफेंस रहेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो निशु अभी आप जैसे आपने बोला कि आप संडे को अपना टाइम इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, जैसे मेकअप करना या सैलून का काम सीखना, ग्रूमिंग एंड ऑल, तो वो क्या आपने कोर्स लिया या आप अपने फ्रेंड को ही बोल के उनके साथ ही सीख रहे हैं? फ्रेंड को ही बोल के उन्हीं के साथ सीखा, क्योंकि कोर्स करने के लिए ना टाइम नहीं था मैम। एक्चुअली क्या है, मंडे टू सैटरडे मेरा ऑफिस रहता है, तो ऑफिस के बीच में सीखने का टाइम नहीं मिल पाता। इवन अगर कहीं मैंने कोर्स के लिए मैंने बहुत पता किया तो टाइमिंग वही 10 to 7, 9 to 7 यही टाइमिंग रहती है। इस टाइम में कंफर्टेबल थे ही नहीं, उस टाइम में ऑफिस भी जाना है, ऑफिस छोड़ नहीं सकते हैं, ऑफिस छोड़ेंगे तो फिर आगे कोर्स करके क्या ही करेंगे। मतलब उसकी उसके लिए भी मतलब 1 to 1.5 लाख कुछ ऐसे उसके लिए फीसेस की थी। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, धीरे धीरे ही करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो ही सही, लेकिन वैसे ही सीख लेंगे, अपने सीन के यहाँ पार्लर में जाकर धीरे धीरे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। think Nisha, you just said a very inspiring sentence कि धीरे धीरे ही सीखेंगे, slowly slowly सीखेंगे, पर सीखेंगे kind of। मैं बस few days back मैं एक बुक पढ़ रही थी जहाँ ये बोला गया था कि आप जिसको आपका गोल जो भी होता है, अगर आप उसको पाना चाहते हो तो हमेशा धीरे धीरे ही जाना। So I think you said something very inspiring kind of over here, and something जो आपकी story से day to day life से relate होता है, and these are very personal. So I think this is something that whoever watches this video, I think I would just like to reconvey what just Nishu said कि मतलब कि आपका goal को अगर आपको पाना है तो आपको धीरे धीरे ही जाना होता है, go slowly, don't rush. So Nishu, how did your interest for makeup or for
salon and grooming started? ये क्या था कि मुझे स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही थोड़ा शौक था मेकअप लाइन का। तो मुझे ये इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे ये करना है। अच्छा, उस टाइम फोन नहीं हुआ करते थे, अब तो यूट्यूब हो गया हमारे पास, नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, टिकटॉक थे वो भी हो गए। तो उन सब पे धीरे 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 देखते रहे तो थोड़ा इंटरेस्ट उसमें आने लगा कि हाँ नहीं, मेकअप इज इजी वे कि हम उस लाइन में अगर जाएंगे तो बहुत जल्दी हाथ बैठेगा, बहुत जल्दी उसको सीख भी लेंगे। मतलब कहते हैं जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो उस चीज में बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है उस चीज में। तो वही था कि मेकअप मुझे इंटरेस्ट भी था और उसमें ग्रो करने का बहुत अच्छा तरीका था कि थोड़ा बहुत आता भी था। तो मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। और अपना वर्क भी करना था, कुछ अपना अपना सैलून वगैरह भी खोलना था। तो यही था कि ड्रीम, मतलब फर्स्ट ड्रीम तो स्टॉप हो गया कि फर्स्ट ड्रीम तो मेरा खत्म, अब वो नहीं हो सकता। तो अब जो सेकंड ड्रीम बनाया है कि अब कोई कुछ ना कुछ चाहे छोटा ही करना है लेकिन अपना बिजनेस जरूर करना है। तो बस यही सोच करके लगे हुए हैं कि चलो संडे भी कवर कर देते हैं धीरे धीरे। आज नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 3 साल बाद कभी तो होगा अपना। यशु, आप बहुत आगे से बोल रहे हो कि एक आपका पहला सपना था जो पूरा नहीं हो पाया, तो आपने अपने लिए दूसरे सपने ढूंढने लग गए। आप हमें थोड़ा बहुत वो पहले सपने के बारे में थोड़ा डिटेल पे बताएंगे? फर्स्ट मेरा बचपन में ही एक ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। लेकिन जब सिक्स क्लास में जब थोड़ा बच्चे को याद रहने लगता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, तो सिक्स क्लास से जब मैंने स्टडी स्टार्ट करी तो उसमें कहते हैं ना, बच्चा जब बड़ा होता रहता है उसकी स्टडीज ज्यादा होती रहती है तो उसी हिसाब से उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो वही हुआ कि हम जब 6 7 क्लास में पहुंचे तो हमारे खर्चे बढ़ गए, वो हमारे फादर अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे मतलब जैसे हम कहते हैं कि आज हमने अपने पापा से पैसे मांगे तो पापा ने बोला नहीं बेटा आज नहीं है, 1 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। धीरे धीरे करके हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, नहीं हुआ। स्कूल में डांट पड़ी, स्कूल में बहुत डांट पड़ी, घर पे आए, फिर वर्क पूरा नहीं हुआ, स्टडी भी कम पीछे होती जा रही है और बच्चों से। इसलिए वो सोच करके फिर जब अर्निंग करनी स्टार्ट करी तो ये लगा कि यार इतने में तो कुछ नहीं हो पाएगा। सुबह 4 बजे उठना, जाना वहां पर 3 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, फिर वापस आना, वो भी न्यूज़पेपर लेके फिर उसे डालना घरों में, फिर 8 बजे घर, 8 9 बजे घर आना, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आने के बाद फिर स्कूल जाना 12 बजे, फिर शाम को आना, फिर स्टडी करना, फिर वही नेक्स्ट रूटीन। टाइम ही नहीं मिल पाया लाइफ में इतना। और वो डॉक्टर स्टडी थी कि मुझे इवन 8 आवर्स से 10 आवर्स तो स्टडी करनी ही पड़ती। अगर मुझे अपना वो ड्रीम पूरा करना है तो वो स्टडी करनी पड़ती, मुझे अर्निंग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ता। अगर जो मेरी फैमिली सिचुएशन थी, फाइनेंशियल सिचुएशन थी, अगर वो अच्छी होती तो शायद ये ड्रीम पूरा हो जाता, लेकिन उस फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। तो 11 तक तो यही लगा कि चलो अभी अभी पार्ट टाइम वर्क करके कर लेते हैं। जब 12th क्लियर हुआ तो या मैंने 12th तक सेल्फ स्टडी कर ली, फिर 12th क्लियर हुआ तो कॉलेज लाइफ आई। कॉलेज लाइफ में और भी खर्चे बढ़ गए। फिर ये लगा कि यार अगर फादर पे डिपेंड रहेंगे तो फिर फादर कितना खर्च उठा पाएंगे। इवन अब वो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। फिर एक साइंस की एक ऐसी स्टडी है कि कॉरेस्पॉन्डेंस से तो हो नहीं सकती। फिर ये ड्रीम वहीं स्टॉप कर दिया, मैंने कहा चलो तो कोई नहीं। अब नेक्स्ट ड्रीम बनाया है, चलो अब वो एक अकाउंट लाइन में तो चलो ये था कि हमने 10th क्लियर करी। 10th के बाद मेरे मार्क्स 70% है 10th में। तो उस टाइम ये था कि साइंस मुझे लेनी थी, लेकिन साइंस उस टाइम मुझे मिली नहीं, साइंस भी नहीं मिली। और फिर ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करी। फिर पापा ने बोला, फैमिली वालों ने बोला कि कॉमर्स साइड से कर लो, कॉमर्स साइड से कर लो, और उसमें उसमें देख लो उस लाइन में। एक फैमिली वालों का मतलब ये कहते हैं कि चारों तरफ से जब सुनो ना कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, फिर ये लगता है कि यार चलो छोड़ो, जब वो नहीं हो पा रहा है तो उसको भी छोड़ो, अब दूसरी लाइन को देखो। तो फिर मैंने कॉमर्स साइड ली, कॉमर्स साइड से 11th और 12th करी। फिर मैंने कहा अब आगे तो कुछ सोचने से फायदा। किसी ने मुझे बताया कि अगर आपको डॉक्टर करना है तो आप एक कोर्स कर लो। मैंने कहा कोर्स कर लो, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला 3 साल रेगुलर देने पड़ेंगे। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे अब तो 12th हो गई है, इसके बाद अर्निंग भी करनी है।
और फैमिली भी संभालनी है, तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता अब। फिर वो ड्रीम वहीं खत्म हुआ। मैंने कहा नहीं, अब नहीं करना है। अब फिर उसके बाद जॉब ज्वाइन करी, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, और वहाँ मेरा 3 साल में मैंने ग्रेजुएशन क्लियर करी। फिर उसके बाद मैंने मास्टर करी। फिर एक सपना मेरा और था पॉलिटिक्स में जाने का। फिर पॉलिटिक्स देख देख के ना न्यूज, फिर ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत ही गलत वे है, इसमें तो बिल्कुल भी पाँव मत रखो क्योंकि इसमें तो बहुत मतलब फैमिली भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में, तो इसलिए ये मत लो। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, पॉलिटिकल साइंस से मुझे मास्टर कर लेनी चाहिए। फिर मैंने मास्टर करी पॉलिटिकल साइंस से। ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स साइड से करी, तो मास्टर मैंने पॉलिटिकल साइंस से करी। अब यही पॉलिटिकल साइंस से ही मैंने पीएचडी के लिए वो एंट्रेंस दिया है, या ये इंटरव्यू दिया है। अब इंटरव्यू क्लियर होने वाले हैं, एक इंटरव्यू क्लियर ही हो गया, उसका एडमिशन की डेट आनी है। एडमिशन की डेट आते एडमिशन होगा, फिर उसके बाद पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी। निशु, जब आप क्लास 10-12 पे थे और ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ रहे थे कि कहीं से भी कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी अलाइन नहीं कर रहा है, मतलब कि मैं साइंस भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फैमिली से भी बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियली मुझे टेक केयर करना है एंड एवरीथिंग, एंड एट दैट टाइम यू डिसाइडेड कि नहीं, अब ये नहीं होगा, समथिंग दैट आई हैड वांटेड टू डू क्लास 6 से अब वो मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो वैसे टाइम पे आपने खुद को समझाया कैसे कि नो, दिस इज नॉट द प्लेस, अभी मैं जितना भी चाहूँ आई हैव टू गिव अप ऑन माई ड्रीम, क्योंकि अब और रास्ता ही नहीं है। एट दैट टाइम हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ, आपने खुद को कैसे समझाया और आपने खुद को कैसे संभाला? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी हम जितना भी आगे बढ़ जाए, जो हमारे मेन ड्रीम होते हैं वो कभी कभी हमको खोते ही रहते हैं कि नहीं यार, मैंने वो टाइम पे मैं वो नहीं कर पाई या मैं वो नहीं कर पाया, राइट? वो थोड़ा सा वो रह जाता है, थोड़ा सा बिटर फीलिंग। तो वैसे पे आपने खुद को कैसे संभाला? हाउ डिड यू कोप? हाँ, लाइफ में कभी कभी ना कुछ ऐसे पड़ाव भी आते हैं कि उसमें हमें ऐसा लगता है कि यार लाइफ बिल्कुल खराब हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये लाइफ यहीं पर ही खत्म। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं यार, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, घर वालों की बहुत उम्मीदें थी, वो नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाया, मैं घर वालों की उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो पाया। उसमें कभी कभी एक ऐसा भी पड़ाव आता है कि हम अपनी लाइफ से हार जाते हैं। फिर भी फिर सोचने के बाद कभी कभी तो ऐसा भी होता था मेरे साथ कि उस टाइम पूरी पूरी रात बीत जाती थी सोचते सोचते, कभी इधर करवट ली कभी इधर करवट ली कि हाय क्या होगा, कल कैसे बीतेगा पूरा दिन, आगे मुझे क्या करना है, अगर नहीं हो पाया तो फैमिली वाले क्या कहेंगे कि इतनी मुश्किल से पढ़ाया है। मतलब एक वो सोचते सोचते ये तो कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि हमें हिम्मत दे जाते हैं, और कभी कभी हम ऐसे पड़ाव पे होते हैं कि हम बिल्कुल टूट जाते हैं, कि ये लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, लाइफ खत्म कर लो। ऐसा भी होता है कभी कभी हमारे साथ। तो ये हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं यार, अगर ये नहीं है तो कोई नहीं, दूसरा रास्ता चूज करते हैं। ये रास्ते पे नहीं जा पाएंगे तो क्या पता दूसरा रास्ता हमारी मंजिल को ले जाके हमारी मंजिल पे पहुंचा दे। अगर हम इस रास्ते से मंजिल पे नहीं गए तो कोई नहीं, दूसरा रास्ता चले जाएंगे, दूसरे रास्ते से नहीं जा पाएंगे तो तीसरा रास्ता ऊपर वाला कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकाल दे। कहते कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, अगर करेंगे तो पॉसिबल है। उसके रास्ते बेशक अलग हो, हम किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ता नहीं जाता, तो हमें दूसरा रास्ता हमेशा चूज करना चाहिए, वो हम उस रास्ते से किसी और मंजिल पर जरूर पहुंच जाए। निश्चित, दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप काइंड ऑफ, मतलब कि कभी भी अपनी जिंदगी पे हार मार के गिव अप मत दे देना, काइंड ऑफ it's just a बिल्कुल। reflection of an attitude of never give up, kind of. And it's so inspiring to be hearing you. I'm completely out of words to even say ki, how inspiring you sound to everybody at this very moment, Nishu. Kind of the challenge that you have faced in your life and the way that you have overcome and the way that you have built new path again and again, that's really tremendous. That's extremely tremendous, Nishu. So Nishu, last few questions about what message do you have for us and for everybody? मतलब मुझे लगता नहीं है कि your message just goes for people from coming from a certain community or section, but I think your message should go overall to everybody who listens to this. What message do you have?
मैसेज मेरा यही है कि अपनी लाइफ से कभी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। अगर आप कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी और से उसके लिए सलाह लो। किसी और से नहीं सलाह ले सकते तो आप एक कहते हैं ना, आंख बंद करके थोड़ा सा मोटिवेट करो अपने आप को, फिर उसके बाद सोचो कि आपको क्या करना है। अपना वे, अपना वे चुनो कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आपको क्या करना है लाइफ में। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो एक बार अपनी फैमिली की तरफ जरूर देखना। कुछ भी करने से पहले आप अपनी फैमिली की तरफ देखोगे तो आपको अपने आप रास्ता दिख जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको जरूर दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला कभी मदद नहीं करता, ऊपर वाला आपको हर एक पड़ाव पे आपको मदद करेगा, हर एक वे में आपको आपकी हेल्प करेगा। बस शर्त यह है कि आपको उस वे पे चलना है, उस वे पे आपको खुद चलना है, उस वे पे आपको खुद मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। स्ट्रगल एक स्ट्रगल नाम का एक ऐसा वर्ड है कि जब तक वो अपनी लाइफ में नहीं लाओगे तब तक लाइफ फॉल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू निशु फॉर दिस मैसेज। आई थिंक ये हर एक इंसान के लिए जरूरी है ये सुनने के लिए, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। Thank I you so think much. it's just a privilege. It's really a privilege to be hearing you today. And I really hope you, whatever you aspire to do, whatever your dreams and goals are, I wish you all the best. And I really hope that you achieve it as soon as possible. And even if there any challenges arise, then I hope you always reflect the same attitude, the same strength, and the same mindset, and always overcome them. Thank you so much, ma'am. So, Nisha, thank you for connecting today. I hope we will see you soon, very soon again, and we will get to share more about it. Thank you so much. For everybody who joined us today, and for whoever who couldn't join, we will be soon uploading this video in YouTube. We all encourage you to listen to Nishu's story and share your story too. Thank you, Nishu. Sure, thank you. Have a good day.